You might have heard about so many people, those who have done so many things in their life. They have achieved milestone, but I was in a huge dilemma. I used to think that why we don't get a people like Helen Keller, apart from it, Stephen Hawking. Those people were disabled, still they were able to achieve milestone in their life. Today, I be confident and I got sigh of relief because of why we do have someone who has achieved really great achievement in her life. You can think that it's not a big deal, but it might be big deal. What would have happened if you would have lose your vision when you were only in 8th standard? Might be you could have thought I should do suicide. My life has ended, but still she has been continuing her own journey. She has a lot of experience. Even though I was forgetting this thing, I must explain in intro, and that thing is being a blind. She took science, 11th standard, 12th standard. Entire journey I brought for you guys with Bhumika. We will be going to start our podcast. First and foremost, let's say welcome her. Really hardest welcome to you, Bhumika. How are you doing? Thank you so much, sir. I am great. I am fine. Thank you for asking. What about you? Thank you really very much. And I'm pretty well. I'm doing nice. It is my pleasure to talk to you. And it must be a wonderful podcast on my entire podcast journey, which I have started. So I would like to ask you my first question. Could you explain about your journey? What kind of moment which you've been through? Yes, sir. But before that, I start. I would like to say thank you so much to giving me this opportunity. Yeah, my name is Bhumika Vavre. I am from Nagpur itself. I lost my vision when I was in 8th standard due to brain TB. After that, I continue my study and now I am pursuing second year from Hislop College. So this is small about me. Introduction about you. That's great to know. I would like to ask you when you lost your vision, what kind of the thought process you did have at moment? When I lost my vision, I went in depression mode. At that time, I met some people who inspired me, and now I am here. It Okay. was very difficult for me after lost my vision, but still at that time I did not failure in my success. Even though after 2 years you did best, it was your best. You got 75% in board exam over 10. Later on, you went for science. And what kind of the problem you had faced there? Could you tell? Because let me explain something which I wanted to explain for my audience. If you are a blind disabled, people don't believe in you. Even I went for the science. I was rejected. I don't know what are the reason why. Even this kind of the problem can be seen in so many respected exam of India. Even the other universities are giving them chance, but in India there is a huge problem. How did you get science? What was that journey? What you had to do in order to tell them you could do? Same happened with me. Same happened with me. They denied. They didn't give me admission in science field. They said how you can do. There are lots of practical in physics, chemistry, and botany. You can't do. You have to take admission in arts. And I said no, I can do. I want admission in science. So they denied me. After that, I went to my principal and I request her, please give me admission in science field. I can do. So they allow me to take permission in the science field. Okay. Later on, you did hard study. You got a 69%.
nearby 70 percentage. How was that journey? How your teacher used to behave with you when you took a science and you used to sit with the student those were normal? Were they supporting you or not? Sometimes they were supported me, but sometimes they did not. Uh, uh, to be honest, there is one mom. I can't tell her name, but she always discouraging me. She always discouraging me. You can't do. Even in 11th standard, she said after taking admission, she said to me, uh, you have to take admission in arts, and now you can do that. Means आप अपने stream change कर सकते हो. She said me. So Mhm. मैंने उनसे कहा आई से नो आई कैन डू मीन्स मैंने उनसे कहा कि आप इनकरेज नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट डिस्करेज तो मत करो That इट्स was the सिंपल strong which was given या by you. So, like, it in a society, as if you are going to do something better, then they pulling you a leg and all. So, why it happened? What do you think? What is the reason behind it? Why society don't want to accept us, or it is the reality they judge us by their past experience? He, she is blind. That's why they can't able to do how they would do. What do you think? दे आई डोंट नो सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं सो आई डोंट नो व्हाट दे थिंक अबाउट मी एट दैट टाइम बस मुझे इतना पता था वो सिर्फ सोचते हैं कि मैं ब्लाइंड हूँ दैट्स व्हाई आई कांट डू बिकॉज प्रैक्टिकल्स होते हैं आई एग्री some practicals some are exceptions there some practicals we can't do because उसमें if I am talking about chemistry so there are lots of chemicals and we have to perform chemical reaction so we can't recognize what will be the result and what will be the last conclusion so some are exceptions but ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं हम कर सकते हैं बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं उसके अलावा हम सब कुछ ही कर सकते हैं इन साइंस स्ट्रीम ऑल्सो We can do so many things which we want. I mean, we must have strong desire, burning desire. That's what we call it. And इतना होने के बाद में you were talking about like your mom was the one who is helping you. You lost your father. इतना सब कुछ हुआ यहाँ लोग छोटी छोटी चीजों से कॉन्फिडेंस हार बैठते हैं. Why it happened with them? Why don't they able to keep go with the confidence? ऐसा क्या था आपके पास में? ऐसा क्या सोचा? It means to say like I don't want to make you confused. I wanted to understand like what was your thought process? इतनी सारी चीजें हो रही है. मैं बता देता हूँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. लड़की 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, आंखें गंवा दी. उसके 2-4 साल बाद इन्होंने अपने फादर को खोया, आई थिंक सो इफ यू आर नॉट मिस्टेकन. उसके या बाद इनकी परिस्थिति भी ठीक नहीं थी. आपकी मम्मी एक स्कूल में केयरटेकर का काम करती है. लड़की के हौसले बहुत बड़े हैं. मैं थॉट प्रोसेस समझना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें कंटिन्यूसली हो रही है. जैसे कहा जाता है कि मुसीबत जो है वो जो है चारों तरफ से आती है ना. हाथी पे बैठ के आती है और पैदल चली जाती है. मतलब बहुत बड़ी बड़ी तरीके से. तो ये सारी चीजें हो रही थी तो आप कैसा फील कर रहे थे? दूसरा क्वेश्चन ये है कि मतलब आपने ऐसा क्या किया ये सारी चीजों को बीट करने के लिए? दैट्स व्हाट आई वाज अबाउट टू आस्क यू. व्हेन आई लॉस्ट माय विजन जब मैं ब्लाइंड हुई तब मैं डिप्रेशन में चली गई थी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूंगी अब मैं कैसे सरवाइव करूंगी इनफैक्ट मेरे माइंड में ये तक आया था कि अब मतलब मेरा आई कांट सरवाइव तो उस समय मेरी मम्मा मेरे हमेशा सपोर्ट में थी मेरी मम्मा मुझे हमेशा इनकरेज करती थी कि कुछ नहीं होता यू कैन डू एनीथिंग यू कैन डू एवरीथिंग थिंक पॉजिटिव एंड डोंट फील नर्वस
वगैरह वगैरह। बट हम्म, एडमिशन के समय में अगर बात करूँ, मैं जब ब्लाइंड हुई तब मेरे स्कूल टीचर्स ने मुझे लीविंग दे दी, टीसी दे दी, बिकॉज ऑफ द माई ब्लाइंडनेस, एंड दे सेड टू माई ममा, योर डॉटर इज ब्लाइंड, नाउ शी हैज टू टेक एडमिशन इन ब्लाइंड स्कूल. At that time, my parents did not know that much about blindness and that much about those people who are blind pursuing their education. तो उन्होंने लीविंग निकाली, उन्होंने टीसी निकाली है, क्योंकि उन्हें मतलब ये लगता था कि मेरी बच्ची का ईयर वेस्ट नहीं होना चाहिए. उसके बाद उन्होंने फिर जब इंक्वायरी निकाली तब उन्हें पता चला कि नागपुर में ब्लाइंड स्कूल सिर्फ 7th स्टैंडर्ड तक ही है, उसके बाद बच्चे नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई करते हैं. तो ऐसा कुछ रहा मेरे साथ एडमिशन के दौरान. और फिर मैंने अपनी 10th प्राइवेट स्टूडेंट होकर कंप्लीट किया. उसके बाद फिर मैं 10th से रेगुलर हूँ, 11 12 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर. और अब very सेकेंड क्वेश्चन इज, मैंने कैसे मैनेज किया. जैसे कि मैंने बताया, जब मैं ब्लाइंड हुई तब मैंने सब कुछ, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरा जीकर कोई फायदा नहीं है. मतलब कुछ सब कुछ मेरे सामने, आंखों के सामने पूरा अंधेरा अंधेरा. मेरा बचपन पूरा नॉर्मल था, मैं नॉर्मल बच्चों के साथ पली बड़ी. स्कूल भी इनफैक्ट नॉर्मल ही स्कूल में थी मैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर अभी तक. मैं कभी ब्लाइंड स्कूल में गई ही नहीं, तो मुझे ब्लाइंड बच्चों के बारे में उतना कुछ आइडिया है ही नहीं कि वो कैसे स्टडी करते हैं. एंड आई डोंट नो ब्रेल लिपि एज वेल. तो मुझे सब नॉर्मल ही एजुकेशन मेरा हुआ. उसके बाद मैं राजेश आसुदानी सर और कमलेश मानवटकर सर से मिली, एंड दे इंस्पायर्ड मी अ लॉट. उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइडेंस दिया और उन्हें मैं अभी फॉलो करती हूँ. उनके गाइडेंस के कारण मैं आज यहाँ पर हूँ. तो मेन प्रॉब्लम ये है, जब अगर कोई स्टूडेंट विजन लॉस होता है, अगर उसका बाय बर्थ हो तो ठीक है, वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है एटमॉस्फेयर सराउंडिंग के साथ. बट अगर लेटर वो ऑन वो ब्लाइंड होता है, तो सही समय पर उन्हें प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है. अगर हमें गाइडेंस अगर नहीं मिलना प्रॉपर चाहिए. गाइडेंस अगर हमें प्रॉपर गाइडेंस वो मिलता है सही समय पर, तो हम डेफिनेटली कुछ अच्छा कर सकते हैं इन आवर फ्यूचर. That guidance you have received from Asudani sir, which you were यस. telling. यस, एंड मानवटकर सर. Manvatkar sir, it is you were blessed at that time. You got a proper guidance. There are so many students. गाइडेंस. यस. या. हम्म, हम्म, ये तो मतलब इस तरीके से आपने ये सारी चीजें बता दी. अब वर्तिका बनना क्या चाहती है? What do you want to be? I want to get job in banking sector. This is my aim. I hope so. You will get a job in banking sector itself. I would like to ask you a question related to society, because what I have observed when I do talk with the people, those are in a society, usually they do have different kind of perspective which is beyond of my total mindset. Like what they think, the blind people can only and only do bhajan, they can chant mantra, they can mostly sing a song, only these are the limitation for them. So have you ever seen somebody else, those who have such kind of the awkward perception about blind people, and how do you deal with such kind of people? नो, मैंने ऐसा, मुझे कभी मतलब ऐसा किसी ने मुझे कहा नहीं. और मैंने ऐसा Mhm, कभी देखा भी नहीं कि ब्लाइंड सिर्फ गा सकते हैं, भजन गा सकते हैं और म्यूजिक में अपना करियर कर सकते हैं. आज mhm, 21st सेंचुरी में ब्लाइंड ने बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं. और बेस्ट एग्जाम्पल तो मेरे सामने ही है, राजेश आसुदानी सर. ही इज वर्किंग इन आरबीआई बैंक, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ आवर इंडिया. ही इज एजीएम ऑफ he is AGM in that bank. Or a second mhm. example, I would like to tell you, Kanchan ma'am, Kanchan Pandey ma'am. She is swimming champion, and she is Good. also totally blind by birth. Mhm. So This kind of thing blind can be. ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड सिर्फ म्यूजिक में और सिंगिंग में ही करियर कर सकता है. अगर ब्लाइंड चाहे तो किसी भी फील्ड में अपना मतलब कर सकता है करियर, if they are interested. You were telling me like you do have some of hobbies, or you love to listen music.
What kind of music you love to listening listen? music. Yeah, and uh, I listen all kind of music, and I am interested in voice over also, and I like to listening motivational speeches also. In That's my great. free time, I spend. You were telling me you Yeah. did work on one audio movie also. What is that incident? Yes. Uh, this is a audio movie, a Zoya horror movie, and I played role in this movie. So Hmm. if you are watching that movie, so you will get to know what is the story of that. I'll put that movie's link in description also, so viewer can take a look upon that. Yeah, इतना surely. हमारे अंदर from where you brought this all talent, कैसे क्या? What is the secret behind it? क्या ऐसा खाती हो या कोई की मतलब There इतनी is देर nothing मतलब particular secret. सारी डिफिकल्टीज आई, सारी डिफिकल्टीज को बीट करते चली गई, फिर कैसे मतलब कैसे दैट मंत्रा वी वांट टू नो बिकॉज़ इतना होने के बाद आई टेल टू सो मेनी पीपल कि ये करना है वो करना है डोंट बी डिप्रेस्ड इट इज रियली सेड नो बट My हाउ mama. Uh, your voice is breaking, sir. हाँ हाँ यू कैन कंटिन्यू यस, मेरी मम्मा सबसे बड़ा, अगर मेरे पीछे किसी का रोल है, आज मैं जहाँ पर भी हूँ, जहाँ तक मैं पहुँची हूँ, उसके पीछे मेरी मम्मी का हाथ सबसे बड़ा है। शी ऑलवेज से मी, इफ यू वांट टू डू समथिंग बेटर, सो यू हैव टू थिंक पॉजिटिव। सी, सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। इफ यू वांट to become a successful person, so you have to think positive. And success is like 99% perspiration and 1% inspiration. This is the mantra which I follow. Oh, well done, Keith. Means like success is not destination. It is a kind of the journey. It is kind of the Yeah. process. You know, what like I would like to share one experience which I have had so many times while talking with so many people, those who talk about success and all. What I think goal must not be the matter, process should be the matter because until and unless you won't enjoy your process, how to get a success? Because end of the day, success also will be going to become bored. So process must be if you learn how to enjoy process then definitely it will reach you to success. तो मेरे को पर्सनली लगता है मेरे को ऐसा Yes, बताया कि correct. अभी ना मतलब मैं तुमसे 1 घंटे बात भी किया उसके बाद अभी पॉडकास्ट कर रहा हूँ मैं मुझे ना एक बहुत अच्छी चीज पता चली मेरा गेसिंग है मैं गलत भी हो सकता हूँ सही भी हो सकता हूँ बट आई थिंक आई मस्ट आस्क कितनी पॉजिटिविटी आती है ना भर भर के इतना मुस्कुराते हुए बोलती हो मतलब कैसे लाइक ये बहुत मुश्किल होता है लोग छोटी छोटी चीजों में डिप्रेस्ड हो जाते हैं ना छोटी छोटी हाँ, सी चीजों अभी में अभी तो ये बहुत कॉमन है। मतलब अभी मोस्ट ऑफ द बस अगर कुछ भी, इनफैक्ट अगर किसी ने कुछ बोल दिया कि नहीं, आप नहीं कर सकते हो, बस डिप्रेस हो गए, तो ऐसे से काम नहीं चलता है। हर बात पर अगर हम डिप्रेस होने लग गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप उनको शो करो ना कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। डिप्रेस इज द नॉट टू आंसर टू एवरी क्वेश्चन। depression is not answer of every question what a strong statement you gave I would like to ask you know it is really easy to do exercise but when it comes to consistency that's when become hard and tough ODS ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि कंसेंट नहीं रह पाते जैसे आप कंसिस्टेंट रही इतना कुछ लूज के बाद भी ये कंसिस्टेंसी को कैसे लाया जा सकता है भूमिका बताओ जरा मेरी मम्मी मुझे हमेशा कहती है, अगर तुझे कुछ करना है, तुझे खुद को प्रूव करना है, तो तेरे पास बेस्ट ऑप्शन सिर्फ एजुकेशन है। इफ यू वांट सक्सेस इन योर लाइफ, सो यू नीड टू बी पॉजिटिव, एंड द बेस्ट सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी इज नथिंग बट द प्रोवाइडिंग एजुकेशनल सर्विस एंड डेडिकेशन, the most important element to reach your goal, and further you need to do regular practice। मेरी मम्मा का हमेशा मुझे यही कहना है, अगर तुझे सक्सेसफुल पर्सन बनना है, तुझे खुद को प्रूव करना है,
दूसरों के सामने, तो तेरे पास सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही अभी फिलहाल के कंडीशन में मोस्ट पॉपुलर की है, एजुकेशन। इसलिए एजुकेशन हमें कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि हमें जो भी कुछ अच्छी चीजें बुरी चीजें सीखने को मिलती है वो एजुकेशन से ही सीखने को मिलती है। और हाँ, ऐसा मतलब नहीं है कि सब कुछ एजुकेशन से ही सीखने को मिलता है, कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस भी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। तो राइट मैंने नाउ, ऐसा, या बोलो बोलो, कंप्लीट करो। या नहीं नहीं, इट्स ओके। हाँ, तुम सेकेंड ईयर में हो, दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग टू यू। ये, यस, आई एम इन सेकेंड ईयर नाउ। कितनी बड़ी बड़ी बातें करती हो तुम, मतलब एक्सपीरियंस है ये सब। सॉरी, योर वॉइस इज ब्रेकिंग सो। ओके, आई फिक्स। एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, yes, yeah, loud and clear. I was asking to you which you were speaking these much great realistic statement you were giving, that all been taught by your mom to you or experience taught you this all, कि जितना तुमने स्ट्रगल किया कर रही हो, ये कहाँ से सीखा? मतलब यार इतनी बड़ी बड़ी बातें इन नटशेल, दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग। हाँ, कह सकते हैं एक्सपीरियंस से, we can consider. सीधा सा सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन विच आई वुड लाइक टू थ्रो टुवर्ड यू। हाँ, मतलब समझो तुम डिप्रेस हो, नेक्स्ट मूव क्या है? अभी क्या करना है? लेट्स से कोई भी रीजन हो सकता है, अभी भूमिका डिप्रेस है, अभी भूमिका क्या करेगी? if I am depressed now, so Now, firstly, what would be your first which move? मैं तो पहले थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाऊंगी, मैं सो जाऊंगी। उसके बाद मैं व्हेन आई वेक अप, सो फिर मैं सोचूंगी कि इस हम्म, सिचुएशन पर मुझे कैसा रिएक्ट करना है। और मैं, अगर मैं खुद नहीं सॉल्व कर पाती हूँ उस सिचुएशन को, तो मैं अपनी मम्मा की हेल्प लूंगी, या फिर मेरे सर और फ्रेंड से जो हमेशा मुझे गाइड करते हैं, मैं उनसे डिस्कस करूंगी। कितना मस्त बताया इन्होंने, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें बता रही है। कि जैसे अभी समझो तुम डिप्रेशन में हो, तो पहले तो सो जाओ। अब इनको सोने से वो फायदा हो सकता है, किसी को म्यूजिक सुनने से, भी म्यूजिक व्यूजिक सुनती ही होगी। हाँ, उसके हाँ, बाद क्या होता है, मतलब कोई कुछ भी हो सकता है ना, वो हॉबी अकॉर्डिंग टू हॉबी। मैं पचड़ कर लेता हूँ किसी से, तो ये मतलब मेरे को अच्छा लगता है। एंड मोस्टली व्हाट आई लव टू क्राई। मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा होता है, पीपल विल से बॉय मस्ट नॉट क्राई, बट इट इज द काइंड ऑफ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग व्हिच आई फाउंड इन मी। 12वीं फर्स्ट ईयर तक आई यूज नॉट टू क्राई, but later on I don't know what kind of changes I have developed in myself. Whenever I think something, I am feeling frustrated and I am getting suffocation, that kind of the thing through life, तो मतलब I do cry और I feel good. सबका अपना अपना तरीका होता है, जैसे इन्होंने एक तरीका बताया, that can be implemented by you guys whenever you are डिप्रेशन। सुसाइड वोसाइड तो दूर तक के होना ही नहीं चाहिए। अब एक बच्ची, अभी भी ये कोई ज्यादा बड़ी थोड़ी ना है, शी इज जस्ट इन सेकेंड ईयर, मोस्टली 19 और 20 सही तो होगा यस, ना? 19, ठीक, 19। 19, शी इज इन टीनेज है। सो यू कैन थिंक कितनी मैच्योर्ड है, सोचो। एंड व्हाई शी इज मैच्योर्ड, हु मेड हर मैच्योर्ड? आई थिंक एक्सपीरियंस। आई थिंक इट हर लाइफ व्हिच मेड हर मैच्योर्ड। तो ये चीजें होती है अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई वुड लाइक टू आस्क यू, मेरे को ऐसा सिचुएशन बताओ कि कभी आपको ना ऐसा लगा हो कि मैं सचमुच में कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन ऑल ऑफ सडन आपको कुछ ऐसा मिलता है कि जहां से आपको एनर्जेटिक आती है, फिर आपका एक्सपीरियंस चेंज होता है कि नहीं यार, सोसाइटी में बुरे लोग भी है, अच्छे लोग भी है, दोनों भी है। इट इज अ काइंड ऑफ द मिक्स अप, बिकॉज व्हाट आई हैव फाउंड व्हेन पीपल टॉक समटाइम, जैसे कि नहीं यार हम लोग को अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता, बट व्हाट आई हैव फाउंड लाइक नहीं, दोनों तरीके के लोग हैं, अच्छे लोग भी है, बुरे भी लोग हैं। We must not think about the people those are bad, but at least we could think about the people those are good, they will help us out, ऐसा मेरे को लगता है। तो तुम यस, कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो? हाँ। आफ्टर टेंथ, टेंथ के बाद जब मुझे इलेवेंथ में एडमिशन लेनी थी, तब जैसा कि मैंने एज आई सेड, वो दे डिनाइड मी। तब मैंने अपने सर को कॉल किया और मैंने उनसे कहा
कि एट दैट टाइम आई वाज क्राइंग कि सर मुझे एडमिशन नहीं दे रहे और मुझे साइंस में ही एडमिशन चाहिए। तो उन्होंने Hmm. मुझे कहा कि आप कर सकते हो, मुझे पता है, और ब्लाइंड स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। हालांकि मुझे तब नहीं पता था कि ब्लाइंड स्टूडेंट भी कर सकते हैं या जिन्होंने भी किया है। तब उन्होंने मुझे इतना, मतलब इतना पॉजिटिविटी से उन्होंने मुझे भर दिया कि मैंने सोचा कि नहीं, अब तो मैं यही करूंगी। मतलब वही प्रॉब्लम क्या आती है जब हम कुछ डिफिकल्टी फेस करते हैं या कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं, तब हमें ऐसे रिसोर्स की ज़रूरत होती है जो हमें इनकरेज करे, जो हमें इंस्पायर करे और जो हमें पॉजिटिविटी को हमारे अंदर इंक्रीज करे, ना कि नेगेटिविटी को। अगर मैं उस दौरान अगर एडमिशन डिपार्टमेंट में ही बैठकर अगर मैं बोलती उनसे कि मैं क्यों नहीं कर सकती, तो वो मुझे बताते आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हो। अगर आप H2O में लिथियम डालोगे तो क्या निकलेगा? अगर आप मतलब फिजिक्स में ये इलेक्ट्रिसिटी का है, प्लस माइनस का है, तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या कंक्लूजन आएगा, ये आप कैसे देख पाओगे? तो वो मुझे नेगेटिविटी उस समय वो मुझ में इंक्रीज करते। बट मुझे पता था कि अगर मैं सर को फोन करूंगी तो ही विल गाइड मी प्रॉपरली। इसलिए मैंने उनको कॉल किया और फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि नहीं, ऐसा होता है। तो बेस्ट वे है जब आप कुछ डिप्रेस फील करते हो या फिर आपके सराउंडिंग में कुछ नेगेटिविटी चलती है, तब आपको उससे हटकर पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। ये बात हमेशा माइंड में रखना चाहिए। फिर से बहुत अच्छी सी बात की है आपने, तो अच्छी बातें कर रहे हो। आई थिंक आई मस्ट आस्क यू सम काइंड ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम देयर आई विल गेट सीरियस आंसर। अकॉर्डिंग टू भूमिका, व्हाट इज लाइफ? बताओ अब। व्हाट डू यू व्हाट थिंक, इज व्हाट लाइफ? इज लाइफ? जिंदगी क्या है? मतलब लाइफ ऐसा इज अ हाँ। नथिंग बट, लाइफ इज नॉट अ रॉकेट साइंस। ठीक है, दिस इज अ Hmm. फर्स्ट पर्सपेक्टिव फ्रॉम माय साइड। Hmm. This is not a rocket science. हाँ, You know, लाइफ है। हाँ, यस। कंटिन्यू करो। मतलब मेरे को पचड़ करने की ज्यादा आदत है ना, दैट्स व्हाई आई मस्ट नॉट इंटरप्ट यू। बोलो यार, आप बोलो हाँ, प्लीज। तो वही, लाइफ इज नॉट अ रॉकेट साइंस, जीवन रॉकेट साइंस नहीं है। हर किसी के लाइफ में, हर किसी के जीवन में अ, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, प्रॉब्लम्स आती रहती है। ऐसा कोई पर्सन नहीं है पूरे होल संसार में जिसके लाइफ में कभी सुख दुख आया ही नहीं है। हमेशा सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते ही रहता है। तो लाइफ, वही जैसा कि मैंने पहले बताया, लाइफ इज नॉट अ रॉकेट साइंस। तो आपको लाइफ को जीना चाहिए विथ इंजॉयमेंट के साथ। एंजॉयमेंट के साथ वी मस्ट लिव अवर लाइफ, वी मस्ट एंजॉय अवर लाइफ। हिस्लॉप कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है आपके लिए? स्लॉप कॉलेज का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और टीचर्स भी कोऑपरेटिव है और हेल्प करते हैं। मीन्स ओवरऑल स्लॉप कॉलेज ही अच्छा है, एजुकेशन पर्पज से बोलो या टीचर फैकल्टी के से बोलो। That's one of the best college in Nagpur, which I Sorry. not saying it's a certain fact. Next question which I want to ask you, it is related to, do you like any sport or any extracurriculum thing? Yes, Bolo. I am interested in swimming, but I don't know how to do swimming. But मुझे स्विमिंग अच्छा लगता है और मैं सीखना भी चाहती हूँ इन फ्यूचर। So अच्छा, I'll do, yeah. you will learn, you will learn. That's not a big deal for you. Nothing is big deal for you. I like, I love your attitude. Which attitude you do have? Very few people can have that attitude, and I think so. Thank It you. is one of the best fortune while talking to you. I am asking you question. I'm blessed with it. I want to It's my, know. I want to know about, if some, let's say, if somebody want to be like Bhumika, you can say that each and everyone are unique. Still, I am just not literally asking. It is a kind of a fictional question. If somebody want to think like Bhumika, somebody want to be like Bhumika, or somebody want to get personality like Bhumika. So, what
kind of the thing can be done in order to be like Bhumika or act like Bhumika? उम्म, देखो सबके पास अपनी अपनी यूनिक पर्सनालिटी होती है, सबके पास अपना अपना एक सबके लाइफ में मतलब सबके पास अपनी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जो हमें स्पेशल फील करवाती है कि हमें मतलब जैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो मेरे पास कोई ऐसी स्पेशल यूनिक पर्सनालिटी नहीं है, बस जो काम मैं करती हूँ मुझे उसमें मजा आता है और मैं एंजॉयमेंट के साथ उस काम को करती हूँ। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब मैं उस काम को सक्सेसफुल करना चाह मतलब कर लेती हूँ। तो Hmm. अगर आपको सच में कुछ बनना है, कुछ करना है, अपने आप को प्रूव करना है, अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली ब्लाइंड पर्सन, अगर आपको कुछ करना है तो आपको खुद को प्रूव करने के लिए आपको वर्क हार्ड तो करना ही होगा। नॉर्मल पर्सन मीन्स साइटेड पर्सन से ज्यादा वर्क हार्ड करना पड़ता है एज ब्लाइंड स्टूडेंट को। अच्छा, ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। मेरे को एक और क्वेश्चन का आंसर दे दो, इसी टाइप का है कि जैसे भूमिका को भूमिका की कौन सी भूमिका या कौन सी चीज जो है बहुत अच्छी लगती है, मतलब तुमको तुम्हारी कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है जिसके कारण तुम मतलब बीइंग भूमिका यू फील प्राउड ऑन? बीइंग भूमिका यू फील प्राउड ऑन, मैं बहुत फ्रैंकली हूँ, मैं जल्दी किसी से भी मतलब फ्रेंडशिप कर लेती हूँ, जल्दी ही घुल मिल जाती हूँ, इन शॉर्ट। So this is the quality which I like most, and yeah, enough. Still, I have this problem. I'm kind of the shy person, but I'm good at a public speaking and stage performance, and that's all. That's why you can think like he's a extra word or like I'm extra spoken person. But I think I'm a shy kind of person. So could you give me some tips how I can be mixed up with the people? You don't need to shy in any case. आपको shy feel करने की कोई need ही नहीं है. Why you are feeling shy? जो Hmm. सामने वाला पर्सन होता है वो हमारे जैसा ही कोई ना कोई पर्सन होता है ना, जिसके पास दो हाथ दो पैर होते हैं। Hmm. तो व्हाई यू फील शाय? आप क्यों In शर्माते हो उससे बात करने में? perspective, मतलब ऐसा मेरा नेचर ही है। आई एम काइंड ऑफ द शाय बाय बर्थ यू कुड से। आई एक्चुअली इट्स तो नॉट लाइक दैट आई एम नॉट दिस मच इंट्रोवर्ट। काम का बात कर लेंगे, मतलब लाइक इफ एनीथिंग व्हिच वुड बी नेसेसरी एंड एसेंशियल आई वुड टॉक। बट आई थिंक तो कि यदि बात मतलब फुकट की बात नहीं करनी, ज्यादा की बात नहीं करनी है तो नहीं करना है। लाइक आई डोंट व्हाई आई गेट अ फीलिंग फ्रॉम ओके, माय इट्स ऑल हार्ट। राइट, इट्स ऑल वाओ। राइट। और किसी किसी का नेचर ही होता है। मीन्स वी कैन बी विद दिस नेचर आल्सो। यस। Bhumika. Bhumika, it was really nice podcast. You gave me your valuable time. While going, what message you want to deliver to our audience? बहुत बढ़िया बातें करती हो, मैसेज भी तगड़ा होगा, बताओ। Yes, yes, I said before, success is not a destination, it's a journey. If you want success in your life, so you need to be positive. And the base source of positivity is nothing but the providing educational services and dedication. The most important element to reach your goal, and further, you need to do regular practice. And I would like to tell you one mantra which I follow personally: 99% perspiration and 1% inspiration is the best key for success. So yeah, this is Small small but thing which I like to tell. small but fruitful message was given by her. इतना अच्छा, मतलब can I say one thing about you? Yes, sure. Not one. There are a lot of things, but first and foremost, you have really great nature.
I think Thank since long I have been touched with you, since long I have been talking to you. ऐसा नहीं है कि मतलब ये पहला दिन है, बट श्योर आई वुड लाइक टू क्लियर दैट कि आज ही हमने बात की है, उसके बाद हम सीधे पॉडकास्ट कर रहे हैं, एंड इट इज अवर ट्रूथ। बट व्हाट आई एम फीलिंग कि मैं तुमको बहुत लंबे समय से जानता हूँ, सो दिस इज योर पावर आई थिंक। दूसरी चीज मुझे आपकी अच्छी लगी, पॉजिटिविटी, द लेवल ऑफ पॉजिटिविटी इतना हाई है, मीन्स आई डोंट हैव वर्ड, आई एम स्पीचलेस अबाउट इट कि इतना बढ़िया लेवल कैसे हो सकता है। थर्ड थिंग, different kind of approach, do compete, you will get a fruitful result. You must not follow proper goal, but you should follow proper process, as you were saying ki, you were saying in a your different word, but I am just converting in my word. ये सारी चीजें हैं, और बिहेवियर तो फर्स्ट क्लास है, लाइक दैट्स व्हाट आई वुड से defeat the अबाउट। problems. स्पीक स्पीक, you were saying something. Yes, we should defeat the problems. हमें प्रॉब्लम से लड़ना चाहिए, ना कि उससे हार मानकर बैठना चाहिए. और तुम लड़ती हो Yes. बहुत बढ़िया तरीके से। मेरे पास पता है क्या, कुछ ऐसा होता है कभी कभी ना, आपके पास शब्द नहीं होते। आई रियली वॉन्ट टू टेल यू, आई प्राउड ऑफ यू। ये तो हर किसी को बोलना चाहिए, नॉट ओनली मी, बट वॉट आई एम फीलिंग भूमिका, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, बट आई आई एम नॉट फाइंडिंग प्रॉपर वर्ड फॉर इट। यू इवन डोंट नो Sometimes व्हाट। हाँ, it sometimes मतलब यू आर रियली happen ग्रेट, with लाइक। me also. हाँ, it means you know which you have achieved, people can't think also। इतना कुछ होने के बाद में when you know it is really easy to run, but when you fall, can you bounce back? That's make, and that shows how is your personality, that's what you have proven, Thank you. है ना। और इसके साथ साथ किताबें विताबें पढ़ती है क्या भूमिका? मतलब ना मैं तो Uh, पहले तो देखो, ओके, ये कब बोल लेना आप, ठीक है। मैं पहले तो आपसे माफी मांगूंगा, बिकॉज uh, यू नो समटाइम व्हाट हैपन इन माय लैंग्वेज, आई बी समटाइम ओवर फ्रैंक while talking with the people, and it happened no, no, with you। that's fine. That's हाँ, fine. हाँ, अभी बोल लो। That's all right. मैं मीन्स किताबें वगैरह ऐसे स्कैन वगैरह से नहीं पढ़ती हूँ, बट मैं यूट्यूब ज़्यादा यूज़ करती हूँ. मैं यूट्यूब पर ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ एज़ कम्पेयर टू व्हाट्सअप, टेलीग्राम और अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स. मैं यूट्यूब पर ही ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ. तो मैं समरीज वगैरह, बुक्स वगैरह जो भी मुझे कुछ सुनना होता है, पढ़ना होता है, तो मैं वहीं से करती हूँ. वेल डन। once again I would like to say you a bunch of thanks, a million of thanks, even I'm थैंक यू speechless। सो मच. थैंक यू सो मच सर. तुमको ठीक ठीक तो लगा ना आके? यस ऑफ कोर्स. हाँ, मतलब ठीक लगा ना, क्योंकि आई डोंट नो हाउ यू फील, बट मेरे को ऐसे लग रहा है इट इज काइंड ऑफ इंस्पिरेशन विच आई गॉट, पॉजिटिव वर्ड आई हैव गॉट, आई कांट एक्सप्लेन। ऐसा होता है कई बार। सादी सी चीज है कि आप से बड़ा किसी और का दुख होता है। वो बहुत सा गाना था कोई सा, मुझे याद नहीं आ रहा है, गम वाला है ना, कि एक हर किसी का जो दुख होता है वो एक दूसरे से बड़ा होता है। कभी भी तुमको हाँ. दुख फील हो तो हमारी हमारी बोल सकते हैं ना आपको, हमारी भूमिका को हाँ. याद कर ले। उसने जो हाँ, भूमिका बिल्कुल. अपनी लाइफ में की अदा की है वो बहुत बड़ी है। तो चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बार शुक्रिया करा, लेकिन पता है मेरी ना आपको जाने देने की इच्छा ही नहीं हो रही है। लाइक यू आर दिस मच एन इंस्पिरेशन, है ना। we will invite you in next podcast also whenever we will make, would you like to come? Yes, sure. Yes, Okay, definitely. I would like to come. and I would like to tell you I am your biggest fan what you are doing. Thank you. Thank you so Okay. much. It's my fortune. Yes. Okay, bye bye everyone, take care of yourself. If you like this video, do subscribe my channel, share it among with your friend, and hit the bell icon so you will be notified whenever I would upload this video on YouTube.